Hello everybody. Today we are going to start with chapter 3 of Political Science of class 11 from book 2. The name of the chapter is Equality. Basically in this chapter we'll be doing the meaning of equality, its different notions, then after that what are the different ways by which equality can be promoted and types of equality. Okay, so hurriedly let's begin with the chapter. Now we'll begin with first topic, why does equality matter? Equality matter ही क्यों करती है, क्या फ़र्क पड़ता है? Okay, now beginning with this, equality, it is a powerful moral and political ideal that has inspired and guided human society for many centuries. बहुत सालों से, बहुत सेंचुरीज से इक्वालिटी एक ऐसा टूल है जो हमारे मॉरल और हमारे पॉलिटिकल लाइफ को गाइड करता आया है. For example, if I say moral tool means if we talk of religion, so religion wise basically every religion say that as we all are human beings, हम सभी human beings हैं, तो being human beings we all are equal because we all are born human beings. भगवान ने सबको जन्म दिया है तो we all are equal. उस हिसाब से हम सब equal है और every religion says this. Second, political ideal. Political ideal के according equality is basically every person is equal with respect to different caste or class or religion or gender. कुछ भी हो, कोई भी criteria ले लो, उन सबको ignore करके all the human beings they are equal. So that is why we say that कि ये एक ऐसा tool है जिसने human society को सदियों से, centuries से guide किया हुआ है. Okay. Now second, as a political ideal, the concept of equality evokes the idea that all human beings have an equal worth regardless of their gender, caste, nationality, class. This I have told you कि politically, morally, religion wise, politically चाहे कोई भी class, caste, gender हो, कोई भी nationality हो, किसी भी country से belong करते हो, we all are equal because we all are human beings. It maintains that human beings deserve equal consideration and respect because of their common humanity. Because we all are humans, we all have a common humanity. सबका जन्म equal हुआ है, भगवान किसी में discriminate नहीं करता है. That is why being the part of humanity, we deserve equal respect, we deserve equal consideration. So today this equality, it is widely accepted ideal which is in all the constitutions and in all the laws of all the countries. ये एक ऐसा concept है जो सारी की सारी countries ने सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूशंस ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वालिटी के कॉन्सेप्ट को ऐड किया है, इस नोशन को ऐड किया है एंड दे फील फॉर इक्वालिटी इन देयर कंट्री. सारे के सारी कंट्रीज़ के लॉज में और कॉन्स्टिट्यूशन में दिस कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी इज़ वाइडली accepted and it is there in the constitutions. Yet it is inequality rather than equality which is most visible around us. फिर भी हम देखते हैं चाहे सारी कंट्रीज़ ने इस कॉन्सेप्ट को अपने कॉन्स्टिट्यूशंस में डाला है, वो इसको रिकमेंड करती है, वो इसको प्रेफर करती है, फिर भी हम आज क्या देखते हैं कि इक्वालिटी से ज़्यादा हमारे आसपास इनइक्वालिटी है. ठीक है, बराबरी नहीं है जो हम पूरे के पूरे वर्ल्ड में, पूरी सोसाइटी में देखते हैं. हम लोग देखते हैं कि लग्जरी अगर हाउसिंग है, लग्जरी हाउसेस के साथ स्लम एरियाज भी हैं हर कंट्री में. इफ़ वी टॉक ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस विद वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़, एसीज एंड फॉरेन टूर्स एंड हाईली स्टैंडर्डाइज करिकुलम एंड ऑल, वहाँ हम वो स्कूल भी देखते हैं जहाँ पे करिकुलम वगैरह तो है बट चिल्ड्रन दे डोंट हैव ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी ऑल्सो, प्रॉपर टॉयलेट्स नहीं बने हुए हैं. ठीक है, तो अगर हम अमीरी देखते हैं, अगर हम रिचनेस देख रहे हैं तो हम लोग पॉवर्टी भी बराबरी पे देख रहे हैं और ज़्यादा ही देख रहे हैं. तो इसलिए इनइक्वालिटी अगर आज हम बोलें, अगर हम अपनी सोसाइटी को देखें तो इनइक्वालिटी ज़्यादा है और इक्वालिटी बहुत ज़्यादा कम है. फाइन. सो नेक्स्ट इज़ अ पैराडॉक्स. Now almost everybody accepts the concept of equality. Paradox क्या होता है? एक confusing state, for example, कि कहने को ये पर असल में ये. ठीक है, तो आज हर किसी ने इक्वालिटी का जो कॉन्सेप्ट है उसको एक्सेप्ट किया हुआ है कि हाँ इक्वालिटी होनी चाहिए. बट हम लोग क्या इनकाउंटर करते हैं, हम लोग ये देखते हैं होती क्या है इनइक्वालिटी.
मतलब कहने को एवरीबडी सेज कि इक्वालिटी शुड बी देयर, बट वी सी इनइक्वालिटी मोस्ट ऑफ द टाइम. Everyone has accepted the notion of equality. So we live in a complex world of unequal wealth, opportunities, work situations and power. हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं, एक ऐसे वर्ल्ड में रह रहे हैं जहाँ पे वेल्थ अनइक्वल है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ की डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं है, किसी को ज़्यादा मिली हुई है तो किसी को अपॉर्चुनिटी मिली नहीं है. अपॉर्चुनिटी मिले तो हर कोई आगे बढ़ सकता है, हर कोई अपने स्किल और टैलेंट को इंक्रीज़ कर सकता है, बट मिली ही नहीं हुई है. वर्क सिचुएशन सबकी अलग अलग है. ये टैलेंट पे भी डिपेंड करता है कि किस में कितना टैलेंट है, किसने कौन सा करियर चूज़ किया और चूज़ करने के अकॉर्डिंग किसको क्या वर्क सिचुएशंस मिल रही हैं और किसी को क्या वर्क सिचुएशन मिल रही हैं. सो ये ऐसा नहीं है कि यू कैन से कि वर्क सिचुएशन या अपॉर्चुनिटी सारी की सारी एक गलत चीज़ है. इट्स नॉट लाइक दैट. वर्क सिचुएशन और जो अपॉर्चुनिटीज़ है इट डिपेंड्स अपॉन द पर्सन एबिलिटीज़ ऑल्सो. ओके. एंड पावर किसी के पास बहुत ज़्यादा है और किसी के पास बिल्कुल भी पावर नहीं है. तो वी आर लिविंग इन सच अ वर्ल्ड जहाँ हम बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं इक्वालिटी की होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, बट वी एनकाउंटर, हम देखते हैं इनइक्वालिटी एंड वी आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग फॉर दैट. कहीं ना कहीं जो लोग इनइक्वालिटी फेस करते हैं दे आर डूइंग इट. वो कहीं ना कहीं कोशिशें करते हैं इसको रिमूव करने की, बराबर आने की, बट स्टिल we are not 100% successful in that. Okay, now next we approach what is equality. Basically equality होती क्या है. Now treating people with equal respect need not mean always treating them in an identical way. अब जब हम कहते हैं कि इक्वालिटी क्या है, अब सभी लोगों को बराबर रिस्पेक्ट मिले, सभी लोगों को बराबर ट्रीटमेंट मिले, तो इट इज़ नॉट बेसिकली इक्वालिटी. बेसिकली व्हाट हैपन्स, हम लोग सबको रिस्पेक्ट के साथ तो ट्रीट कर सकते हैं, एवरीबडी बी ट्रीटेड इक्वली विद रिस्पेक्ट, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम हर किसी को एक जैसे तरीके से उसके साथ ट्रीट करें. ठीक है. सो यू विल अंडरस्टैंड दिस व्हेन विल डू द एग्जाम्पल. कोई भी सोसाइटी वर्ल्ड में ऐसी नहीं है which treat all its members in exactly the same way. You think about yourself only. आप अपनी फैमिली में देख लो, सभी के सभी मेंबर्स के साथ इक्वल ट्रीटमेंट होता है? नहीं, बिकॉज वी हैव डिफरेंसेस इन अस. कोई मेल है, कोई फीमेल है, कोई काम कर रहा है, कोई काम कर रहा है, तो एवरीबडी कैन नॉट बी ट्रीटेड इक्वली. एक अलग तरीके से ट्रीटमेंट होता है, आइडेंटिकल वे नहीं है, एक जैसा तरीका नहीं है सबको ट्रीट करने का. और जो अगर हम कहें कि हमने अपनी सोसाइटी का स्मूथ फंक्शनिंग करवानी है, स्मूथ फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़रूरी है कि डिवीजन ऑफ वर्क हो, काम बांटा जाए और फंक्शंस बांटे जाएं, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट वर्क, ऑन द बेसिस ऑफ दैट फंक्शन ओनली, हर किसी का एक अलग स्टेटस हो जाता है और हर किसी का अलग काम करने की तरीके की वजह से अलग अलग रिवॉर्ड्स हो जाते हैं. कोई बहुत अच्छा काम कर जाएगा तो रिवॉर्ड्स प्राइस ज़्यादा हो जाएगा, कोई कम करेगा मेहनत तो उसके रिवॉर्ड्स कम होंगे. बट सोसाइटी के काम करने के लिए हम ये नहीं ना कह सकते कि हर कोई पर्सन इन द सोसाइटी वो एक जैसे काम करे. अलग अलग काम है सोसाइटी में, हर किसी को अलग अलग काम करने हैं अपने स्किल और टैलेंट्स की वजह से. तो उसी स्किल और टैलेंट्स की वजह से डिवीजन ऑफ वर्क हो जाता है. डिवीजन ऑफ वर्क होने की वजह से अलग अलग तरह के फंक्शंस हो जाते हैं. अलग अलग फंक्शन होने की वजह से हर किसी का अलग अलग स्टेटस हो जाता है सोसाइटी में, और उस स्टेटस में वो कितना काम कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है हाउ मच रिवॉर्ड्स द पर्सन इज गेटिंग. सो इक्वालिटी डजंट मीन कि एवरीबडी शुड बी ट्रीटेड इन एन आइडेंटिकल वे, बट एवरीबडी शुड बी ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट. फाइन. सो एट टाइम्स दीज डिफरेंसेस ऑफ ट्रीटमेंट, जो हम ट्रीट करते हैं लोगों को अलग अलग डिफरेंट वे से ट्रीट करते हैं, ये कई बार हमें एक्सेप्टेबल भी लगता है. हम ये नहीं कह सकते कि ये हर बार गलत है कि इस पर्सन के साथ तो हम बहुत अच्छा ट्रीट कर रहे हैं, सेकंड पर्सन के साथ हम बहुत अच्छा ट्रीट नहीं कर रहे हैं. तो हम ये नहीं कह सकते कि ये चीज़ें गलत हैं. फॉर एग्जाम्पल कई बार ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं. फॉर एग्जाम्पल we usually do not feel that giving prime minister or army general a special official rank and status. अब आपको पता है प्राइम मिनिस्टर हो या प्रेसिडेंट हो या आर्मी जनरल्स हो, इन लोगों को एक स्पेशल स्टेटस मिलता है, स्पेशल रैंक मिलती है. तो हम ये नहीं कहेंगे कि वहाँ इक्वालिटी नहीं मानी जा रही. बिकॉज ऑफ देयर स्टेटस, बिकॉज ऑफ देयर रैंक, बिकॉज ऑफ देयर वर्क फंक्शन, उनको एक स्पेशल इंपॉर्टेंस दी जाती है तब तक जब तक वो अपनी प्रिविलेजेस का गलत यूज़ ना करें. अगर वो गलत यूज़ करते हैं तो हम कहेंगे इनइक्वालिटी हो रही है. बट अगर वो जो उनको प्रिविलेजेस मिल रही है एक सही तरीके से, अच्छे तरीके से यूज़ करते जाएंगे, देन विल से दैट द थिंग्स आर गोइंग वेल एंड
there is no inequality, things are going with equality, and the privilege has been given in accordance with the work assigned to the particular person. अब यहाँ पे मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल देती हूँ. फॉर एग्जाम्पल, इफ अ चाइल्ड इज बॉर्न इन अ स्लम फैमिली, स्लम एरिया में बॉर्न हुआ है, और स्लम एरिया में बॉर्न होने के नाते ही इज़ नॉट एबल टू गेट द अपॉर्चुनिटीज़, उसको आगे आने का मौका नहीं मिल रहा, उसको फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही, सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिल रहा. यहाँ हम कहेंगे इनइक्वालिटी है. जन्म तो सबने बराबर लिया है ना, अपॉर्चुनिटीज़ तो सबको मिलनी भी चाहिए, बट ही इज़ डिनाइड जस्ट बिकॉज ऑफ हिज प्लेस ऑफ बर्थ, कि उसने जन्म वहाँ पे लिया है, इसलिए उसका बर्थ स्लम एरिया का है, इसलिए उसको ये फैसिलिटीज़ नहीं मिलेंगी. उसको हम बोलेंगे दैट इज़ इनइक्वालिटी. आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू. So next is what distinctions and differences are acceptable and which are not. मैंने आपको बताया ना, कुछ differences होते हैं जो acceptable होते हैं सोसाइटी में, और कुछ होते हैं जो जिनको हम कहते हैं इनइक्वालिटी है, ये तो ये acceptable नहीं है. तो कौन से differences acceptable है, कौन से inacceptable है. सो व्हेन पीपल आर ट्रीटेड डिफरेंटली, जब उनको अलग से कई लोगों को हम अलग से ट्रीट करते हैं क्योंकि वो एक अलग धर्म में उनका जन्म हुआ है, एक अलग रेस है, एक अलग जेंडर है, एक अलग कास्ट है, तो इस तरह की जो सिचुएशन है, इस तरह का जो ट्रीटिंग डिफरेंटली है, उसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे. दैट विल बी द फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी, वो इनइक्वालिटी होगी. ठीक है, वी कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट एनीबडी ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, जेंडर, रिलीजन और रेस. तो अगर हम किसी को ट्रीट करते हैं एक अलग तरीके से जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ दीज फैक्टर्स, देन वी से दैट इनइक्वालिटी इज देयर. अब यू नो ह्यूमन बींग्स दे हैव डिफरेंट एम्बिशंस. हर किसी के अलग अलग एम्बिशंस हैं, गोल्स हैं, हर किसी का अलग काम करने का तरीका है, हर किसी को कुछ ना कुछ, किसी को कुछ पसंद है बनना, किसी को कुछ पसंद है. सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट व्हेन पीपल दे परस्यू, वो अपनी एम्बिशन को पूरा करते हैं, अपने गोल्स को पूरा करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली काम करते हैं, और तब डिफरेंसेस आ जाते हैं लोगों में. कोई थोड़ा ऊपर उठ जाता है, कोई थोड़ा नीचे रह जाता है. देन वी कैनॉट से दैट इनइक्वालिटी. हम उसको इनइक्वालिटी नहीं बोल सकते, क्योंकि वो एक पर्सन ने अगर कोई एम्बिशन, कोई गोल चूज़ किया है, कोई काम चूज़ किया है, तो वो उसने अपनी मर्जी से किया है. ठीक है. सो अगर कमिटमेंट ऑफ टू आइडियल ऑफ इक्वालिटी, अगर हम बात करें कि इक्वालिटी का लिए कमिटमेंट करनी ज़रूरी है कि सारे डिफरेंसेस को हटा दो, दैट वुड बी रॉन्ग टू से. वी कैन नॉट एलिमिनेट ऑल द डिफरेंसेस बिकॉज some differences occur when people they choose the things on their own. So बेसिकली कौन सी चीज़ें एक्सेप्टेबल है और कौन सी नहीं एक्सेप्टेबल है, इसका अगर हम क्रक्स निकालें, एक समरी निकालें, तो ये है कि इट सुजेस्ट दैट ट्रीटमेंट वी रिसीव एंड अपॉर्चुनिटीज वी एंजॉय मस्ट नॉट बी प्री डिटर्मिन्ड बाय बर्थ और सोशल सर्कमस्टांस. बाय बर्थ, या जो सोसाइटी बना दे कि ये तो इस रिलीजन का है, इसको तो अलग ही रखो, इसको तो ये चीज़ें नहीं मिलनी चाहिए. तो अगर ऐसी कुछ सोशल सर्कमस्टांसेस आती हैं कि इसकी तो कास्ट लो है, ये तो शुद्रा में बॉर्न हुआ है, इसको ये डॉक्टर कैसे बन सकता है, तो अगर इस तरह की सिचुएशंस आती हैं या बाय बर्थ किसी को एनालाइज किया जाता है, तो वो चीज़ें एक्सेप्टेबल नहीं है. अदरवाइज थिंग्स आर एक्सेप्टेबल इन द सोसाइटी. वेल, नेक्स्ट इज इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़. Now you know the concept of equality, it implies that all human beings, they should have same rights, they should have opportunities. उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए, उनको अधिकार, राइट्स मिलने चाहिए, ताकि वो अपने स्किल, अपने टैलेंट्स को डेवलप कर सके और उसी के बेसिस पे अपने गोल्स और एम्बिशंस को चूज़ कर सके. ठीक है. तो इक्वालिटी का बेसिकली ये मतलब है कि हर किसी को राइट्स और स्किल्स या अपॉर्चुनिटीज़ इक्वली दो, ताकि उसके स्किल्स और टैलेंट्स डेवलप होके ही कैन परस्यू हिज गोल और एम्बिशन. सो पीपल है दे हैव डिफरेंट टैलेंट्स एंड स्किल्स. हर किसी के पास अलग टैलेंट्स है, अलग स्किल्स है. अगर अपॉर्चुनिटी सबको दी जाए ग्रो करने की, तो अपने टैलेंट और स्किल के बेसिस पे कोई थोड़ा ऊपर हो जाएगा, कोई थोड़ा नीचे हो जाएगा, विच वी विल नॉट कॉल एज इनइक्वालिटी. वो इक्वालिटी ही होगी. सो बेसिकली फॉर इक्वालिटी या इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, किस चीज़ की अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए? एजुकेशन की, हेल्थ केयर की, सेफ हाउसिंग की, फाइन, बेसिक गुड्स, ये हर किसी को मिलने चाहिए सोसाइटी में. ये चीज़ें, अगर ये चीज़ें मिलती रहेंगी, देन वी विल से दैट द सोसाइटी इज़ इक्वल, सोसाइटी इज़ जस्ट. अगर ये चीज़ें नहीं मिल रही हैं एंड द गैप इज़ इंक्रीजिंग बिटवीन द रिच एंड पुअर पीपल, देन वी विल से दैट इट इज़ अनइक्वल एंड अनजस्ट.
society. So it is not the lack of equality of status or wealth or privilege that is significant. अगर किसी के पास स्टेटस नहीं है, वेल्थ नहीं है, प्रिविलेज नहीं है, वो ज़रूरी नहीं है, वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है. बट अगर किसी के पास एजुकेशन नहीं है, हेल्थ नहीं है, सेफ हाउसिंग नहीं है, तो वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं चीज़ों की वजह से हमारी सोसाइटी अनजस्ट अनइक्वल सोसाइटी बनती है. सो वी नीड टू गिव दीज बेसिक्स थिंग्स टू ईच एंड एवरी इंडिविजुअल, ईच एंड एवरी सिटीजन, सो दैट हमारी सोसाइटी एक जस्ट, एक फेयर सोसाइटी बन सके. Next we come to basically we have two types of inequalities. जो inequalities है वो दो तरह की हो जाती हैं. एक तो होती हैं नेचुरल, ठीक है, नेचुरल इनइक्वालिटीज़ जो होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ बेसिकली यू कैन से बर्थ, ठीक है. दे इमर्ज बिटवीन पीपल एज अ रिजल्ट ऑफ हर किसी, एवरी इंडिविजुअल इज़ डिफरेंट, हर इंसान अलग है, हर किसी में अलग कैपेबिलिटीज़ है, अलग टैलेंट्स है. तो ये जो नेचुरल इनइक्वालिटीज़ होती हैं basically they are the result of characteristics and abilities with which people are born. For example, a person has taken a birth and he is excellent in painting. पेंटिंग के बेसिस पे वो अपना स्टेटस रेस कर जाता है सोसाइटी में, और एक दूसरा पेंटर है वो इतना ऊंचा नहीं चढ़ पाता है. तो जो इनइक्वालिटी आएगी वो उनकी नेचुरल इनइक्वालिटी होगी, वो सोसाइटी ने नहीं दी, या वो गवर्नमेंट ने नहीं दी, या वो लोगों ने नहीं दी उसे, ठीक है. सो दीज आर नेचुरल इनइक्वालिटी जो कैपेबिलिटीज और टैलेंट्स के बेसिस पे होती हैं, एंड विच आर नॉट गिवन बाय द सोसाइटी, दे आर नेचुरली इनहेरिटेड बाय द पर्सन्स. दूसरी हमारी होती हैं सोशल इनइक्वालिटीज़. अब सोशल इनइक्वालिटीज़ बेसिकली क्या होती हैं? दे आर क्रिएटेड बाय सोसाइटी, सोसाइटी क्रिएट करती है. फॉर एग्जांपल कुछ सोसाइटीज़ ऐसी होती हैं जो इंटेलेक्चुअल, दिमागी काम से जो होता है उनको ज़्यादा रिवॉर्ड दे देती हैं, और जो हाथ से मेहनत कर रहे हैं उनको कम रिवॉर्ड मिलता है. या लोग एक दूसरे को अच्छे से ट्रीट नहीं करते क्योंकि वो अलग रेस के होते हैं, अलग कलर के होते हैं, अलग जेंडर के होते हैं, अलग कास्ट के होते हैं. तो जब इन चीज़ों के ऊपर इनइक्वालिटी, इन चीज़ों के ऊपर ट्रीटमेंट होता है तो वो होती है सोशल इनइक्वालिटी, क्योंकि सोसाइटी, लोग डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, लोग फ़र्क कर रहे हैं लोगों के बीच में, ठीक है. सो डिफरेंसेस ऑफ दिस काइंड रिफ्लेक्ट द वैल्यूज़ ऑफ सोसाइटी एंड सम ऑफ दीज सर्टनली अपीयर टू एज अनजस्ट. तो अगर हम बोले कि अनजस्ट कौन सी है इन दोनों में से, तो वो नेचुरल इनइक्वालिटी अनजस्ट नहीं है, क्योंकि वो हमारे टैलेंट और हमारी कैपेसिटी के बेस पे हमने कुछ चूज़ किया और हम अपना काम कर रहे हैं. जो सोशल इनइक्वालिटीज़ है दे आर हाईली अनजस्ट, ये सोसाइटी क्रिएट करती है, ये बाय बर्थ यू कैन से, मतलब कोई भगवान ने अगर पैदा किया तो ये नहीं कहा कि इस रेस का है तो इसको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलनी चाहिए, ये इसका ब्लैक कलर है तो ही इज़ नॉट गुड एट ऑल. तो भगवान ने सबको इक्वली पैदा किया है, तो ये सोसाइटी ने सिस्टम ख़राब करके लोगों के बीच में डिफरेंस क्रिएट किया हुआ है. सो सोशल इनइक्वालिटीज़ आर हाईली अनजस्ट एंड नेचुरल इनइक्वालिटीज़ दे आर नॉट अनजस्ट, दे आर चूजन बाय द पर्सन अकॉर्डिंग टू देयर ओन विल. Now let us see some other problems in this. Sometimes जो हम distinction कह रहे हैं कि ये naturally you can say natural inequality है, ये social inequality है, society ने दी हुई है, इसमें कई बार क्या होता है कि the people they get confused basically. Distinction is sometimes used in building us distinguish between acceptable and unfair inequality in society, but it is not always clear or self-evident. अब कैसे confusion वाला system है? Let us have some examples. Now when certain inequalities, कई बार क्या होता है बहुत सारी inequalities in the treating of people they have existed from long period of time, बहुत सालों से, बहुत पहले से inequalities हो रही हैं, लोगों को एक ही तरीके से ट्रीट किया जाता है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचुरल इनइक्वालिटी, क्योंकि जो उनका नेचुरल इनइक्वालिटी का उसी के तरीके से उनको यू कैन से ट्रीट किया जा रहा है. और व्हेन पीपल दे आर बॉर्न विथ सच इनइक्वालिटीज़ तो हम उसको चेंज भी नहीं कर सकते. फॉर एग्जांपल जो वुमेन है, वुमेन को एक वीक जेंडर माना जाता है, कंसिडर किया जाता है कि ये टिमिड है, लेस इंटेलिजेंट देन मैन है और इसको स्पेशल प्रोटेक्शन चाहिए. फाइन, देयरफॉर इसलिए ये माना गया कि वुमेन को इक्वल राइट्स नहीं देना एक जस्टिफाइड, क्यों इक्वल राइट्स देना, वुमेन तो वीक है, वुमेन टिमिड है, वुमेन इज़ लेस इंटेलिजेंट देन मैन, तो इक्वल राइट्स की ज़रूरत ही नहीं है इसे. तो इस तरह की चीज़ें, क्योंकि ये क्यों कहा जाता है, क्योंकि वुमेन को सदियों से, सेंचुरी से ऐसे ही ट्रीट किया जा रहा है, बिकॉज शी इज़ बॉर्न वीक,
कैसे वीक है, सिर्फ फिजिकली वीकर देन मैन, ठीक है, वो भी आज के केस में बहुत ज़्यादा नहीं है, बट सिर्फ वो चीज़ दिमाग में रखे कि शी इज़ फिजिकली वीकर देन मैन, और सदियों से वुमेन को एक इन्फीरियर माना जाता है, कमज़ोर माना जाता है कि इसका इंटेलिजेंस भी कम है मैन से, इसको स्पेशल प्रोटेक्शन चाहिए। तो इसी बेसिस पे बोला जाता है कि इसको राइट्स की, इक्वल राइट्स की ज़रूरत ही क्या है, इक्वल राइट्स तो नहीं होने चाहिए, मैन के जब बराबर है ही नहीं, मैन से डाउन है, तो इक्वल राइट शुड नॉट बी गिवन। और दूसरी जो प्रॉब्लम आती है वो आती है ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल डिफरेंसेस इन सम डिफरेंसेस विच कंसिडर्ड नेचुरल, और उनको हम ऑल्टर नहीं कर सकते, ठीक है, ऐसी चीज़ें। अनदर प्रॉब्लम विच अराइजेस विद द आइडिया ऑफ नेचुरल डिफरेंसेस इज दैट सम डिफरेंसेस विच कुड बी कंसिडर्ड नेचुरल नीड नो लॉन्गर बी सीन अनऑल्टरेबल। पहले जो हम कहते थे कि जो नेचुरल डिफरेंस है हम इसको बदल नहीं सकते, जो जैसे पैदा हुआ है हम उसमें क्या कर सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। कोई ब्लैक एज अ स्किन कम्प्लेक्शन जिसका ब्लैक है हम उसको नहीं बदल सकते, जिसकी जो पैदा हुआ है एक टांग नहीं है, उसकी एक लेग ही नहीं है, हम क्या कर सकते हैं, वो तो हम चेंज कर ही नहीं सकते। बट यू नो इन टुडेज मेडिकल साइंस, विद द हेल्प ऑफ मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिसेबल पीपल है जो, वो भी बहुत अच्छे से सोसाइटी में फंक्शन कर रहे हैं। कंप्यूटर की हेल्प से ब्लाइंड पीपल या व्हील चेयर्स की यूज़ कर रहे हैं, आर्टिफिशियल लिम्स, लेग नहीं है तो उसकी जगह एक नकली लेग लगा दी जाती है ताकि ही कैन रेज हिज स्टेटस इन द सोसाइटी, और वो आराम से फंक्शनिंग भी कर सके सोसाइटी में। किसी का शक्ल अच्छी नहीं है तो कॉस्मेटिक सर्जरी से उसके प्लास्टिक सर्जरी कर दी जाती है। तो इन सब चीज़ों की वजह से जिन चीज़ों को हम सोचते थे कि हम क्या कर सकते हैं, हम तो बदल ही नहीं सकते, वो सारी की सारी चीज़ें आज के टाइम में इट कैन बी चेंज एंड इट वुड सीम अनजस्ट, ये गलत लगेगा ज़्यादातर लोगों को अगर डिसेबल पीपल को कोई हेल्प ना दे, कोई कह दे कि इनको क्यों हेल्प देनी, इनको क्यों रिवॉर्ड देना, इनको वो काम दो जो ये काम, ये जो मतलब आसानी से हो जाए कि ये लोग भी कर सकते हैं, ये हर काम तो नहीं कर सकते, छोटा मोटा काम ये कर सकते हैं। तो ये गलत, बहुत सारे लोगों को गलत लगेगा। बहुत सारे लोग ये भी फील करते हैं कि हाँ आज के टाइम में तो आर्टिफिशियल लिम्ब लगवा लो, कॉस्मेटिक सर्जरी करवा लो, कुछ भी कर सकते हो, कंप्यूटर की हेल्प से कुछ भी हो सकता है, तो इनको स्पेशल प्रिविलेज क्यों दी जाती है, इनको इंपॉर्टेंस देनी नहीं चाहिए, ये अब बराबर है, इनको बराबरी दो। But it is wrong to say. No doubt they are born with disabilities. No doubt आज के टाइम में हम हर चीज़ चेंज कर सकते हैं, बट यू नो एवरीबडी कैन नॉट डू इट, हर कोई नहीं कर सकता ये चेंज, जिसकी वजह से these people they should be given special importance, ठीक है। तो अगर हम इनको स्पेशल इम्पोर्टेंस दे देते हैं डिसेबल पीपल को, या जिनको सदियों से दबाया जा रहा था उनको थोड़ा ऊपर लाने के लिए हम कुछ कर देते हैं, तो हम ये नहीं कहेंगे कि उनको अब इक्वालिटी कहाँ गई, तो हम ये कहेंगे कि उनको जब हम आगे लेके आए हैं, उनके लिए कुछ स्पेशल कर रहे हैं, तो उनको बराबरी देने के लिए ही कर रहे हैं, उनको इक्वालिटी देने के लिए ही कर रहे हैं। वो इक्वल नहीं थे अब तक, इक्वालिटी के लेवल तक लाने के लिए ही उनके साथ स्पेशल ट्रीटमेंट किया जा रहा है, या वुमेन के लिए लॉज बनाए जा रहे हैं, या फॉर एग्जाम्पल हैंडीकैप पीपल है उनके लिए स्कूल्स में, जैसे आपने देखा होगा सिनेमा हॉल्स में रैंप बनते हैं ताकि वो लोग बाकी लोगों की तरह अपने आप जा सकें, उनको किसी की सपोर्ट की ज़रूरत ना पड़े। विद द हेल्प ऑफ रैम्प्स दे कैन मूव अप एंड डाउन एंड वेयर एवर दे वांट टू गो। सो अगर हम ऐसी चीज़ें करते हैं तो हम ये नहीं कहेंगे ये इनइक्वालिटी है, उनको स्पेशल इंपॉर्टेंस दे दी, उनको स्पेशल इंपॉर्टेंस इसलिए दी गई है ताकि वो बराबरी पे आ सकें, उनके पास इक्वालिटी आ सके। ओके, सो आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू। देन after that we have these complexities would be difficult to use नेचुरली सोशली प्रोड्यूस डिस्टिंक्शन एज स्टैंडर्ड। तो इन सब चीज़ों की वजह से, बिकॉज आर सोसाइटी इज चेंजिंग, मेडिकल साइंस टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा आ गई है, हर चीज़ में चेंज हो सकता है, तो इन चीज़ों की वजह से आज के टाइम में जो नेचुरल इनइक्वालिटी और सोशली प्रोड्यूस, जो मैंने ऊपर 2 टाइप्स करवाए हैं इनइक्वालिटी है, इसमें जो एक गैप था, एक लाइन थी, एक डिस्टिंक्शन था, उसको वो ब्लर होती जा रही है, वो ख़त्म होती जा रही है, और इन दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है बिकॉज ऑफ the changing society and changing technology। और you know naturally और socially produced distinction के basis पे laws या policies बनते थे, तो वो जब इनको imagine करना ही मुश्किल हो जाता है कि कौन सा natural और कौन सा socially produced है, और natural भी हम change कर सकते हैं, तो यहाँ पे problem आ जाती है to determine the type of equality। Fine।
So today we'll do this much only. Next part of this chapter we'll do in another video.